Hello, dear learners. Today we are going to discuss about the summary of our first credit in bacterial physiology and fermentation technology. We are going to just discuss the points and some important topics or the important concepts of enzymes because we already discussed all the major concepts and subtitles of the syllabus in the previous 5 lectures. So today we are going to just summarize this topic, that is your enzyme. So first of all, what do you mean by enzyme? अभी ये आप सबको पता है बिकॉज अपने ये टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है. सो what do you mean by enzyme? Enzyme is nothing but it is a biocatalyst, okay, and that catalyst which increases or which actually influences the rate of reaction or it increases the speed of reaction without being unchanged and with lowering the activation energy is known as enzyme. सो ये एंजाइम बनता किससे है? हम लोगों ने फिर जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि एंजाइम के कुछ प्रॉपर्टीज़ है. जैसे एंजाइम होते हैं हाईली स्पेसिफिक, सोल्यूबल. एंजाइम का बैकबोन जो है वो है प्रोटीन, ठीक है. प्रोटीन, अगर प्रोटीन पढ़ना है तो प्रोटीन सबसे पहले जो प्रोटीन का बैकबोन है वो है अपना लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड. ओके, देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंट और व्हाट आर द डिफरेंट अमीनो एसिड्स? देयर आर 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स. लाइकवाइज फर्स्ट इज हाइड्रोफोबिक non-polar amino acids, in which 9 amino acids that are included. In the second, polar uncharged amino acids, there are 6 amino acids are included in that heading, and last one is charged amino acid, in which 5 amino acids are there. 3 are positively charged and 2 are negatively charged. Okay, so these are the classification of 20 standard amino acids, and the another 2 is pyrrolysine and selenocysteine. So total they are 22 standard amino acids. Okay, so enzyme is made up of the protein, and the protein is made up of our amino acid. This definition that can speak or that can elaborate the concept of enzyme, that is, we are the catalyst of living world. Protein in nature, action in specific, rapid, accurate, huge in size but with small active center. And you know that enzyme is useful for the detection of many diseases. Like when you are going to study about the medical microbiology, in that there are some viruses you have to study in the syllabus of medical microbiology, and how to detect the virus. For that purpose we are going to isolate or we are going to collect the sample, and we perform some tests like ELISA. ELISA means what? Enzyme link immunosorbent assay. Okay, so in that, enzyme is highly important for detection of that particular viral proteins या particular test, so that what it मीन. ओके, देन अभी एक्टिव साइट. एंजाइम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी. उसके बाद आता है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट आपको पता है कि सबसे मेजर रोल एक्टिव साइट का है. एक्टिव साइट का रोल क्या है कि अगर एक्टिव साइट प्रेजेंट है तो उसी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जाके बाइंड होने वाला है. बाइंड होने के बाद ES कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. जैसे अपन रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ते A + B it will gives rise to C, ठीक है, that is प्रोडक्ट. वैसे ही जब एंजाइम को सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एंजाइम के पास होता है एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट के पास होता है बाइंडिंग साइट, ठीक है. ये दोनों जब स्पेसिफिक रहते हैं तभी वो जाके बाइंड करेंगे. बाइंड करने के बाद
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, रिएक्टेंट्स कोलाइड होंगे, उसी के बाद फिर उसका कन्वर्जन मतलब सबस्ट्रेट सैचुरेट होगा। सबस्ट्रेट सैचुरेट होना मतलब क्या, there is a utilization of substrate 100% and then it will going to the resultant product। ओके, सो ये हो गया एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एक्टिव साइट जो बनती है वो भी अमीनो एसिड से बनती है। देयर आर सेवरल अमीनो एसिड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है सीरीन। ठीक है, सीरीन जो अमीनो एसिड है वो एक्टिव साइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अबाउट एक्टिव साइट। उसके बाद आता है सम ऑफ द कंसेप्ट लाइक होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब क्या कि कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम। तो ये कंप्लीटली एक्टिव एंजाइम कब बनेगा, जब अपो एंजाइम एंड योर कोफैक्टर। ठीक है, अपो एंजाइम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। अपो एंजाइम होता है प्रोटीन पार्ट और को एंजाइम होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ये दोनों जब जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तभी एक आपका एक्टिव एंजाइम बनेगा और उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, these all concepts we are dealt with in previous lecture। okay, this is just a summary। okay, then उसके बाद आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या होता है कि जब कोफैक्टर को नॉन प्रोटीन मोइटी बाइंड होती है टाइटली या कोवैलेंटली। टाइटली बाइंड होने मतलब क्या है कि जो भी बॉन्ड्स रहेंगे वो कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स रहेंगे या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस रहेंगे, तो उसे अपन कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसे कहेंगे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, सो these are some examples, we already discussed with that। उसके बाद था फिर द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हमने कैसे पढ़े थे, तो उसके लिए एक कमीशन है और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, उस प्रकार एंजाइम को क्लासिफाई किया था। कैसे क्लासिफाई किया था, तो क्लासिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दिए थे उस प्रकार हमने एंजाइम्स को 6 मेन क्लासेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट क्लास था अपना ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा था ट्रांसफरेज, तीसरा था हाइड्रोलेज, फोर्थ आता है आपका लाइजेस, फिफ्थ था आइसोमरेजेस एंड सिक्स्थ था आपका लाइगेजेस। सो दीज ऑल आर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लाइक एंजाइम कमीशन ने एक रूल दिया था कि आपको 4 डिजिट्स देने हैं जिस प्रकार आप एंजाइम को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एंजाइम कमीशन ने जो रूल दिया उस प्रकार अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये एग्जांपल है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 1 1 इनमें से जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है वो डिनोट करते हैं क्लास, सब क्लास एंड सब क्लास, एंड जो लास्ट वाला डिजिट है वो जनरली इंडिकेट करता है द ऑर्डर ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था एंजाइम का वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ कंसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ एंजाइम, इफेक्ट ऑफ temperature, effect of enzyme concentration and effect of substrate concentration। लेकिन उससे पहले हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे। तो फर्स्ट मॉडल था आपका लॉकेन की मॉडल या लॉकेन की थ्योरी। तो लॉकेन की मॉडल आपको सबको पता है कि एक स्पेसिफिक की इज देयरफॉर टू ओपन द स्पेसिफिक लॉक। ओके, so why this is so, because the enzyme have active site and this active site is rigid according to the scientists, and due to this there is a specific key is required. So when there is a specific key, then only the lock going to open, and so
In the case of enzyme, when enzyme is specific for the substrate or substrate is specific for the enzyme, then the enzyme substrate complex will going to form, and ultimately our aim is to form the product. Whatever the product we want, it will be going to form by the formation of the complex like enzyme substrate complex. But there is some disadvantage, or the theory was not properly implemented, because in that the active site is rigid. So when there is active site is rigid, so it will not going to change the conformation of the active site. So there is a next theory, that is your induced fit model. Induced fit model, that is also known as Koshland's model. In that Koshland's model, it generally tells us that active site is flexible, and when there is a flexibility in the active site, the substrate specificity matters, but in the less amount. Because if active site is flexible, then substrate will have the different shape, or will have the different binding site, and enzyme having the different active site. The substrate going to change or induce some changes in the active site of enzyme, and then it will going to bind the enzyme, and ultimately enzyme substrate complex will form. And when there is a formation of enzyme substrate complex, substrate will get saturated fully by the enzyme, and the product will form, and enzyme will get free for binding of another substrate. So this is the most accepted theory, that is your induced fit model or Koshland's model. Then there is a next theory, is transition state theory. Transition state theory, it says or tells that the enzyme and the substrate, that is the reactant, when collide with each other, then there is a without an enzyme, activation energy will be high, or the requirement of activation energy will be high, because there is an absence of enzyme. So enzyme is your biocatalyst, and it is also known as the speed up the reaction. Okay, so when the enzyme is not there for the completion of reaction, so वहाँ पे क्या होने वाला है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगा. लेकिन जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, और जब एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो सबसेट का सैचुरेशन जल्दी हो जाएगा, और लोअरिंग वो क्या करने वाला है, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करने वाला, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उसको कम लगी. हमने वो ग्राफ भी पढ़ा था, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द 3 theories. After that we studied about the effect of temperature, effect of pH on the enzyme activity. अब एंजाइम क्या है, इट इज़ अ कैटालिस्ट, मतलब क्या कैटालिसिस करना उसका मेन एम है. जब उसको सबस्ट्रेट मिल जाएगा तो उसका अल्टीमेट एम क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और कैटालिसिस होगा. कैटालिसिस होने के बाद अपना जो भी प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है. सो व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, अभी आपको पता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ योर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. व्हेन टेम्परेचर विल इंक्रीजेस, देन योर मेटाबॉलिज्म गेट चेंज. तो इस प्रकार ऑप्टिमम पीएच, जसं तुम्ही बॅक्टेरियाला ग्रो होण्यासाठी न्यूट्रिएंट आगार देतात, त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला एक पीएच चेक करतात. जेव्हा तुम्ही आगार बनवतात तेव्हा तुम्ही त्याचा पीएच चेक करतात, त्याला NaCl म्हणजे सॉल्ट देतात, कार्बन सोर्स देतात, पेप्टोन देतात, नायट्रोजन सोर्स देतात, सगळं देतात. का देतात? कारण की त्याचं मेटाबॉलिझम व्यवस्थित व्हायला हवं. त्याच प्रकारे मेटाबॉलिझम कोण करून आणणार आहे, ते एन्झाईम्स. डिग्रेडेशन असेल, कॉम्प्लेक्स कॅटाबॉलिझम असेल, ॲनाबॉलिझम असेल, दीज आर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दॅट आर कॅरीड आउट बाय एन्झाईम्स. सो एन्झाईम रिक्वायर सम ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम एन्झाईम कॉन्सन्ट्रेशन, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन.
Why? Because if you want 100% enzyme activity, you have to give optimum pH. अगर ट्रिप्सिनेज है उसको 2 pH लग रहा है और अपन 7 pH उसको दे रहे, तो एंजाइम उसका कैटालिसिस कर ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि pH में क्या होने वाला है, वहाँ पे चार्ज आयंस है. कहाँ पे है चार्ज आयंस? एंजाइम के पास. एंजाइम के पास कहाँ से आए फिर चार्ज आयंस? बिकॉज एंजाइम बनता है प्रोटीन से, और प्रोटीन मेन बाय अमीनो एसिड. सो अमीनो एसिड के पास फंक्शनल ग्रुप्स है. फंक्शनल ग्रुप्स हो गए मतलब वहाँ पे कुछ आयन से, वो भी चार्ज आयन से, अनायन से, कटायन से. उसके वजह से अगर पीएच बढ़ भी जाए या कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है? डीनेचरेशन का होने वाला है. तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा. सेम है टेम्परेचर. टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए. कुछ एंजाइम्स के अगर फंक्शंस करना हो, जैसे RT-PCR हो गया, PCR हो गया, तो उस केस में डीएनए पॉलीमरेज, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज नहीं चलेगा. उस केस में अपने को लगता है कि जो 90 डिग्री सेल्सियस या 91 डिग्री सेल्सियस तक भी अपनी एंजाइम एक्टिविटी मेंटेन करके रखे, वो एंजाइम अपन कंसीडर करते. जैसे टैग डीएनए पॉलीमरेज. टैग डीएनए पॉलीमरेज मतलब थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज. थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज, this is the enzyme that are extracted from the Thermus aquaticus, and these bacteria are generally found in hot springs. ठीक है, गर्म पानी के जो फव्वारे होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया मिलते हैं. तो this all about the effect of pH, temperature, substrate concentration and enzyme concentration. तो अगर ऑप्टिमम दे रहे हो, अगर किस एंजाइम को अगर एक्टिविटी 100% दिखानी है तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस, अगर ह्यूमन बॉडी में उसको वर्क करना है तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस या उस रेंज में 37 ±2, उस रेंज में उसको मेंटेन करना पड़ेगा. तभी जाके वो एंजाइम हाईली एक्टिव रहेगा, हाईली कैटालिसिस कर सकता है. उसके बाद था अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्टिवेटर्स एंड इनिबिटर्स. अगर एंजाइम को फंक्शन करना है, वो 75% एक्टिविटी दिखा रहा है, और उस एंजाइम को हम एक्टिवेटर या कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड कर दे, दैट मॉलिक्यूल विल इन्फ्लुएंसेस द एंजाइम एक्टिविटी. मतलब वो एक्टिविटी बढ़ा रहा है तो उसे अपन कहते हैं एक्टिवेटर. अगर वो एक्टिविटी घटा रहा है तो उसे हम कहेंगे इनिबिटर. तो इस प्रकार हमने कुछ एंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनिबिटर्स के एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे. उसमें कुछ मेटल आयन था, कुछ मेटल एंजाइम्स भी थे. ये सब हमने एक्टिवेटर्स और इनिबिटर्स में पढ़े थे. सो इस प्रकार अभी ये पूरा एंजाइम का यूनिट विद द समरी और विद द रिवीजन ऑफ द एंजाइम यूनिट इज finished. If you have any question, you can ask in the comment section. You can ask in the Google Classroom. I already assigned you the assignment in the Google Classroom. You have to submit that assignment within a period of time, that is I think 22 या 22 अक्टूबर तक आपको वो सबमिट करना है. ठीक है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स यू if you are to ask in Google Classroom, you can also ask and submit the assignment as soon as possible. Okay, so thank you.